Assalamu alaikum. Hey guys, what's up? My name is Mohsen Pervez and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss about IELTS listening, that how can we improve in our IELTS listening test and how to get 9 bands. What is the criteria for that and what are the main tips and tricks? For that you have to watch the full video. Let's start. Yo! Before moving further, I just want to clear one thing here is that many of the students ask me about that if there is any big difference between IELTS academic listening and IELTS general listening. So the answer is absolutely not. There is nothing a big difference between IELTS academic listening and IELTS general listening. Your test for IELTS listening will be same for each module, either it is for IELTS academic ones or for IELTS general ones. Okay, let's move on. So first of all, in your IELTS listening test, you have given a 4 sections in your test. Each section is divided into one part. Total we have 4 parts. You can say that we have 4 parts in our IELTS listening test, and each part is divided into 10 MCQs. Each part is divided into 10 questions. So it means that we have 4 types. We have 4 sections and each section is divided into 10 MCQs, 10 questions. And I want to mention here one thing more, that the first section is the easiest section, okay, and the second section is little bit tougher and so on. The last one is the hard one, okay. And in first 2 sections, which means the question from question number 1 to question number 20, there will be only one speaker, and between from question number 20 to question number 30 there will be 2 or 3 speakers. And if we move further in our 4th sections, that there will be possibility of that we have 3 or 4 speakers. Now we will come to the timing of IELTS listening test. What will be the possible timing of IELTS listening test? और यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको 40 मिनट्स पूरी रिकॉर्डिंग प्ले की जाएगी और आपको क्वेश्चन आंसर ये वो दिस दैट ब्ला ब्ला। बट यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ऑडियो स्क्रिप्ट होती है, ये पॉसिबल इसकी टाइमिंग होती है 25 मिनट की ऑडियो स्क्रिप्ट प्ले की जाती है, जिसमें 5 मिनट जो होते हैं एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उन्हीं 25 मिनट्स में। तो 25 प्लस 5 ये आपको 30 मिनट हो गए। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो ऑडियो प्ले होगी वो 30 मिनट्स होगी, और बाकी अब जो 10 मिनट बचे हैं अब उनका क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपके पास 40 मिनट्स होंगे। तो जो लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं इसमें आपने अपने आंसर जो हैं आंसर शीट पे ट्रांसफर करने हैं, ओके। द नेक्स्ट स्टेप इज to use the answer sheet to practice to transfer the answer to the answer sheet. Why is that so? मैंने ये क्यों कहा? ये इस वजह से कहा कि बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि जब लोग आंसर ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वो आंसर ट्रांसफ़र करते हैं आंसर शीट पे तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट का आंसर फाइंड आउट कर लिया और आप उसे सेकंड ब्लॉक में ट्रांसफ़र करते हो तो ये आपका रॉन्ग आंसर कंसीडर किया जाएगा। और याद रखिए कि आइल्स की लिसनिंग में हर एक पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है, ओके। अगर आप 40 के 40 करते हो तो आपको 9 बैंड स्कोर हो जाएंगे एटलीस्ट। अगर आप 17 18 अगर एकेडमिक वाले जो कर लेते हैं तो उनको नॉर्मली 5 बैंड मिल जाते हैं, और यही अगर 16 टू 17 18 अगर जनरल वाले करते हैं तो उनको 4.5 इतने बैंड को मिल जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने आपका जो भी आंसर है वो आपने सोच समझ के, इन केस इफ यू फाइंड द आंसर नंबर 10 सपोज and you have to transfer in that block of the 10th answer. सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने केयरफुली जो नंबर का आपने आंसर ढूंढा है, जो लिखा है, वही उसी ब्लॉक में उसी नंबर में जाके आपको वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा।
एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। अब रीड द स्टेटमेंट केयरफुली का क्या सीन है? वाई वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट? बिकॉज द स्टेटमेंट इज द मेन थिंग। वाई स्टेटमेंट इज द मेन थिंग? Because statement tell us about what we have to write in our question paper, in our answer sheet. Like statement is telling us about that you have to write a one word, you have to write a two word, you have to write one word or a number, and you have to write a letter. So in case इन सब चीज़ों में हमें क्या देखना है? अगर स्टेटमेंट हमें कह रही है कि आपको एक वर्ड ट्रांसफर करना है तो आप एक ही वर्ड ट्रांसफर करोगे तो आपको उसका मेन स्कोर मिलेगा। अगर वो कहती है टू वर्ड्स तो आपको टू वर्ड्स ही आप ट्रांसफर करोगे तो आपको उसका मेन स्कोर मिलेगा। ये बात बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। देखें कि वहां पे ऊपर लिखा होता है, हमेशा मैं यही कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को भी कि स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करें। अगर स्टेटमेंट को ही नहीं केयरफुली रीड आउट करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर्स में क्या करना है ये कुछ भी नहीं पता। और इवन के बहुत से अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी यहीं पे फ्लॉप हो जाते हैं कि वो स्टेटमेंट को केयरफुली रीड नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आपको उस सिचुएशन पे चलना पड़ेगा। आपको जो आइल्स की स्टेटमेंट है उसी को लेके चलना पड़ेगा। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। जो सिचुएशन हमें प्रोवाइड की जाती है आपको उन्हीं सिचुएशंस में रह के अपना आंसर ट्रांसफर करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको वन वर्ड, टू वर्ड, वन नंबर, टू नंबर, सो ऑन इसके बारे में बताया है। सपोज कर लेते हैं कि जब आप हेडिंग्स में भी जाते हो, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो जब आपकी स्टेटमेंट लंबी हो, आंसर लंबा हो, तो वो वहां पे देता है कि चूज द करेक्ट लेटर। तो आपने उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट नहीं करना होता, आपने उस स्टेटमेंट के लेटर को, उस स्टेटमेंट के नंबर को आंसर शीट में ट्रांसफर करना होता है। तो ये चीज आप याद रखिए। नेक्स्ट टिप इज द लिसनिंग विल बी प्लेड ओनली वंस। बहुत से स्टूडेंट मुझे से ये पूछते हैं कि सर जो ऑडियो स्क्रिप्ट होगी, जो लिसनिंग होगी, क्या वो बार बार वो प्ले करेगा? क्या उसमें पॉज करेगा फिर प्ले करेगा, ऐसे कुछ क्या होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो आपकी लिसनिंग होगी ये याद रखिए कि वो एक ही बार प्ले की जाएगी। आपको एक ही टाइम मिलेगा, आपको एक ही मौका मिलेगा आपकी लिसनिंग को सॉल्व करने का। There will be no other possibilities to solve the listening. The listening will only be played only once. Okay? Many of my students ask me, sir, whether we can use a pencil, a pen, a ballpoint, a marker in our IELTS listening test or in other tests like writing task, reading task, whatever. So personally I recommend that most of my students and also the people that you have to use a lead pencil. You have to use a lead pencil. अच्छा, इसका ये सीन है कि अगर आप lead pencil यूज करते हो तो इन केस अगर आपका कोई वर्ड गलत भी हो जाता है, इन केस आप उसको इरेज करके आप दोबारा लिख सकते हो। अदर केस में अगर आप बॉल पॉइंट यूज करते हो या पेन यूज करते हो तो उसका आपको पता है कभी कभार उसकी स्याही भी होती है, उससे आपका पेपर खराब भी हो सकता है। और बॉल पॉइंट से अगर आप कोई चीज़ लिखते हो तो इसको साफ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर व्हाइटनर के साथ साफ करते हो तो आपको पता है उसका भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो स्ट्रांगली रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि आप वहाँ पे एक लेड पेंसिल ही लेके जाओ और वो भी अच्छी। Okay, there is also another problem like using a pencil, pen, or a pointer or something else. There is another problem related to this, is that we have to write the letters in capital forms or in lower cases. So this is a huge problem that many of the students also ask me about that. So इसके लिए मैं आपको recommend करता हूँ कि आप कैपिटल लेटर्स में ही अपना आंसर ट्रांसफर करो। और इसका एक आपको रीज़न भी बताता हूँ कि आप लोअर केस में भी कर सकते हो, इट्स ओके। लेकिन हमारा ये सीन है कि हम जब लोअर केस में जब अपना आंसर ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अब कुछ लोग का जो होता है क्राइटेरिया जल्दी लिखने में वो कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। जैसे ई को कभी कभार सी की शेप में लिख दिया, डी का जो होता है डी और सी और आई को जैसे आप डी लिखते हो तो कभी कभार आप जल्दी में ऐसे डी लिख देते हो तो वो पता चलता है सी के आगे एल या आई लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपने उन चीज़ों पे गौर करना है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग आइडिया यही है,
स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि आप कैपिटल फॉर्म में ही अपने आंसर ट्रांसफ़र करो। सो मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप कैपिटल फॉर्म में ही अपने लेटर जो है ट्रांसफ़र करो, क्योंकि उसमें जो एम्बिगियसनेस होती है, जो अनक्लैरिटी होती है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अदरवाइज़ जो आपका लोअर केस होता है उसमें बहुत ही एम्बिगियस सीन्स नज़र आते हैं। तो इसके लिए आप कैपिटल फॉर्म में ही अपने लेटर ट्रांसफ़र करो। स्पेलिंग स्पेलिंग की जहाँ तक बात रही तो बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या सर आइलेट्स में स्पेलिंग की भी चेकिंग की जाती है, क्या ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स होती हैं इनको भी देखा जाता है? तो डेफिनेटली देखा जाता है, आपकी रीडिंग में, आपकी लिसनिंग में, स्पीकिंग में, और खासकर जब आप आंसर ट्रांसफ़र करते हो तो लिसनिंग में और रीडिंग में खास तौर पर। और एकेडमिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बताता चलूँ कि उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि ग्रामेटिकली जो वो करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, उनको उनसे अवॉइड करना चाहिए अगर उनको अपने अच्छे बैंड्स लाने हैं, अच्छे बैंड स्कोर करने हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मैटर करता है कि आपकी स्पेलिंग्स जो होने चाहिए बिल्कुल एक्यूरेटली एंड एग्जैक्टली ओके होने चाहिए, अदर केस आपको उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। जैसे आप लिख देते हो APPLE एप्पल, तो अगर आप जल्दी में हो या अगर आपने वहाँ पे गलती से अनइंटेंशनली अगर आपने APPL लिख दिया तो ये किसी सूरत में भी आपका वैलिड आंसर नहीं होगा, उसका आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं कि आइल्स लिसनिंग की फॉर्मेटिंग की। जैसे आपकी रीडिंग में फॉर्मेटिंग्स होते हैं वैसे यहाँ पे भी आपको फॉर्मेट्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी आ सकता है, आपको फिल इन दी ब्लैंक्स आती हैं, आपके पास मैप आता है, आपके पास कोई पिक्चर आती है डिफ़ाइन करने के लिए कभी कभार, और कभी कभार आपके पास समरी आ जाती है, और इसी तरह कभी कभार आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, और एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैंने जो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि जब आप लिसनिंग कर रहे होते हो तो बहुत से लोग एक ही क्वेश्चंस में स्टक होकर रह जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे नहीं कीजिएगा। अगर आपका एक क्वेश्चंस आपको नहीं हो पाया, आपने स्किप कर दिया, तो ट्राई टू मूव ऑन टू फाइंड द सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड और फोर्थ और सो ऑन। अगर आप से एक नहीं हुआ तो आप दूसरे को ना जाने दें, हाथ से तीसरे को ना जाने दें। मैंने ऑब्ज़र्व किया है खुद ही कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब एक क्वेश्चन से स्किप हो जाता है तो उसी पे स्टक होके रहते हैं, और जो आपका स्पीकर होता है वो शायद 5वें, 6ठे या 10वें पे पहुंच गया हो। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ को रिगार्ड करना है। ओके गाइस, ये थी कुछ टिप्स सिर्फ आइल्स की जो मॉड्यूलिंग है, फॉर्मेटिंग है, कि आपने आइल्स की लिसनिंग में क्या क्या करना है उसके रिलेटेड। तो अभी इसके ऊपर डीप डाउन बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द नेक्स्ट टाइम कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके के लिए आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वो बताई जाएँ कि आपने कैसे ग्रैब करने हैं, अपने आंसर कैसे ग्रैब करने हैं, आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को कैसे ग्रैब करना है, आपने ब्लैंक्स को कैसे ग्रैब करना है। तो उसके लिए मेरा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द आइल्स लिसनिंग। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।